दादी सीरीज एक्सक्लूसिव जनहित में जारी, क्योंकि इनकी टिप्स है ले भारी। वेल फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूट्री रीच। हम पहले के ज़माने में कुछ भी चीज़ों को स्टोर करने के लिए या सेव करने के लिए उन्हें लिखते थे या उन्हें बुक फॉर्म में, आज भी काफ़ी लोग बुक फॉर्मेट में उसे सेव करते हैं, but the world is going digital. So I decided to capture all this Nani Dadi secrets into my YouTube channel to ensure that everybody gets benefited out of it. So if you haven't yet subscribed to my channel, it's high time. Do subscribe the channel right away because you're going to have loads of valuable information that can help you in your daily routine. Introduced to my beautiful mom. She is my mama, and definitely I know she looks a little more younger than me, and that's because she has the secrets that I am going to be taking it from her. So the Indian masalas. This episode is dedicated to the Indian masalas. We all know हल्दी, मिर्ची, धनिया, राई, जीरा हमारे घर के जो मसाले हैं, इन्हें कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, इन्हें कैसे हमें प्रिजर्व करना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए ताकि ये हमारे पूरे साल भर के लिए जब भी हम स्टोर करते हैं और इसे यूज़ करते हैं, हमारे फूड का टेस्ट और भी बेहतर हो और अच्छा हो सके. So today we are exactly going to be learning this concept in this video. So let's begin. So as we all know that Indian masalas are not merely for taste. They have loads of nutritional benefits as well. Meanwhile, till we understand कि कैसे इन मसालों को बनाते हैं, let's also understand some scientific approach to this. So, for example, there are certain vegetables that we add jeera. There are certain vegetables where we add ajwain. Why what is added has a very, very strong scientific reason to it. And that is what we really need to know about the culinary expertise. So, to begin with our super masala, the super food haldi. In this time of coronavirus, ये एक ऐसा ingredient है जो पूरे विश्व में बहुत famous हो चुका है. क्यों? क्योंकि हल्दी में होती है curcumin, and this curcumin is very beneficial to have anti-inflammatory properties and lots of them definitely. सो इसीलिए मुझे लगता है हमारे इंडियन जो रेट्स हैं, जो हमारे कोरोना वायरस के जो रिकवरी रेट्स हैं, वो काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि ये आज का स्पाइस नहीं है. हल्दी इज अ स्पाइस दैट वी हैव बीन यूजिंग फॉर एजेस टुगेदर, एंड इट इज सो इम्बाइब्ड इनटू आवर जेनेटिक सिस्टम, इनटू आवर कुकिंग ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज, दैट इट हैज हेल्प्ड एवरीवन टू फाइट दिस वायरस इन अ मच स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर वे. सो it may protect you against the heart diseases, prevents diabetes. Also, it is very good for the skin health. As we all know, शादी में मेहंदी का और हल्दी का एक बहुत important function होता है. मेहंदी की जो तासीर होती है वो ठंडक प्रदान करती है, और हल्दी की जो क्वालिटी होती है वो हमारे स्किन टाइटनिंग के लिए, स्किन ब्यूटिफाइंग के लिए, स्किन वाइटनिंग के लिए और बहुत सारे नरिशमेंट के लिए उसके बेनिफिट्स होते हैं. इसीलिए हल्दी की रस्म मनाई जाती है ताकि आप अपने स्किन को अच्छे से नरिश कर सके, एंड यू गेट द ब्राइड एंड द ग्रूम ग्लो. सो इट डेफिनेटली हेल्प्स ऑन द बिगेस्ट लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ अवर बॉडी, एंड दैट इज द स्किन. It also works as an anti-aging supplement. It is used in several home remedies like treating cold, cough, and especially haldi ka doodh when you have terrible aches and pain all across the body. How can we forget that magical haldi milk? Also, and the list is quite long. One major contributing factor to our Indian cooking is haldi, because it is a ingredient which is used in almost 90% of our Indian cooking recipes. So mom, I want to know from you, हल्दी कैसे सिलेक्ट करते हैं मार्केट में जाके, और हमें कैसे उसे प्रिजर्व करना चाहिए ताकि वो पूरे साल भर उसमें कीड़े ना हो, वो खराब ना हो. हल्दी कैसे है कि बहुत तरह की आती है. सेलम है, फिर कोई लाल गाय की हल्दी यूज़ करता है, कोई राजापुरी यूज़ करता है. ऐसे बहुत तरह की हल्दियाँ आती है, अपने ऊपर डिपेंड करता है. अब जैसे महाराष्ट्र में सेलम बहुत अच्छी क्वालिटी की हल्दी मानी जाती है, तो सब लोग बेस्ट में बेस्ट हल्दी लाते हैं.
मगर उसको हम अपनी चक्की में नहीं पीस सकते, तो हमको उसको पिसाने के लिए चक्की ढूंढनी पड़ती है। चलो चक्की में हमने पिसा भी लिया तो हम उसको फिर घर में लाके छानते हैं, क्योंकि बाई चांस उसमें कुछ कोरस रह गया हो। फिर छानने के बाद में फिर उसको हमको प्रिजर्व करने का एक बहुत अच्छा नुस्खा है जो तुम्हारी दादी ने मुझे बताया था। वाओ। और वो चीज़ बहुत ही सुंदर है, उसमें हल्दी का कलर और पकड़ लेता है। और वो हल्दी 3 साल भी मेरे घर में अभी भी रखी हुई है, मगर उसमें बिल्कुल भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। तो जैसे हमने 1 किलो हल्दी, अभी आजकल क्या है कि बच्चे गूगल पे ढूंढते हैं, मॉल से मंगाते हैं, तो उनको साबुत हल्दी लाके गूगल पे तो चक्की मिलेगी नहीं, तो वो लोग रेडीमेड हल्दी ले आते हैं। कोई बात नहीं, रेडीमेड हल्दी ले आओ, मगर उसमें घी वगैरह मिला के कोई नहीं देता बाहर वाला। तो आप घर में ले आओ, उसको लाके समझो 1 किलो हल्दी है तो उसमें आप 50 ग्राम घी हल्का सा गरम कर लो, लुकवार्म, उसको करके उसको पूरी हल्दी काउस घी, एनी घी यू कैन यूज। ओके। और फिर बाद में उसको आप है ना पूरे इसमें ऐसे अच्छे से मसल लो, जिससे कि पूरी हल्दी में घी मिल जाए। और फिर आप उसको आराम से कांच की बोतल, प्लास्टिक की बोतल, जिसमें स्टोर करना है करो। पहले के ज़माने के लोग ज़्यादा करके कांच की बोतल में ही प्रिजर्व करते थे। Yes, definitely, because plastic has its own negative impacts. Also, the pH of the haldi can change if we are preserving it in plastic. So it's preferred to store it in a glass jar. container. Yes. So store करना चाहिए. The quick tip here is by applying ghee and all across the haldi. So the ghee has to be in very limited amounts, just to brush it up, kind of. Okay, so that it is used as a natural preservative. Move on to the lal mirch ka tadka, the red chili powder. Red chili powder is a very rich source of vitamin C. Yes, it is a very rich source of vitamin C. You heard it right. Also, it has a high content of potassium, which helps in maintaining the blood pressure. It contains a compound which is called as the capsaicin. Capsaicin. This compound increases the metabolism and therefore aids in the process of fat burning. Also, it produces happy hormones and it prevents in heart ailments as well. Though excess usage can cause intestinal distress, abdominal pain, it can cause hyperacidity, burning sensation. At times it can lead to cramps and at times to diarrhea. So using the red chili powder judiciously is the key from the nutritional point of view. Let's move on to understand how to get it from the market and how to preserve it. बेटा, हमारे इंडिया में ना कलरफुल मसालेज होते हैं और उसका फ्लेवर भी कलरफुल होता है। तो जैसे हल्दी है पीला कलर देता है, तो मिर्ची लाल, तो जीरा हमको डिज़ाइन दिखाता है तड़के में। लाल मिर्च भी बहुत तरह की होती है, जितनी सस्ती मिर्ची उतनी तीखी मिर्ची, जितनी सस्ती मिर्ची उतनी तीखी मिर्ची, और जितनी कलरफुल मिर्ची उतनी महंगी होती है। तो सादी मिर्ची, लवंगिया मिर्ची वगैरह, उसको पांडी और क्या क्या बोलते हैं, बहुत तरह की अपना अपना टेस्ट है, अपना अपना चॉइस है, से लेके कश्मीरी बेस्ट मिर्ची होती है, जिसमें तीखापन कम होता है, हमको एसिडिटी प्रॉब्लम भी कम होती है। तो ये डिपेंड्स, अगर किसी को बहुत चटपटा खाना होता है तो कभी वो क्या करता है कि बहुत तीखी वाली मिर्च यूज़ करता है। अगर किसी को कलरफुल बनाना है तो उसे कश्मीरी यूज़ करनी पड़ती है। कभी दोनों को बैलेंस भी करते हैं कोई लोग, तीखा और थोड़ी सादी काले कश्मीरी, धूप में सुखाना पड़ता है। और सुखाने के बाद अगर हम तुरंत उसको नहीं पीसते हैं 1 घंटे में, तो बॉम्बे जैसे में मॉइस्चर होने के कारण वो सील जाती है, और फिर अगर उसको पीसेंगे तो उसका कलर थोड़ा डार्क हो जाता है। तो इसलिए हमको तुरंत पीस लेनी चाहिए, या फिर हम चक्की पे पिसा लें उसको धूप लगा के। कितने दिन धूप लगानी पड़ती है? धूप जैसे 4-5 घंटे की अच्छी धूप 1 दिन भी चल जाती है। ओके। और अगर नहीं लगी 4-5 घंटा तो 2 दिन लगा दो। ओके। क्रिस्पी करनी है कैसे भी करके हमको, क्योंकि उसका प्रिजर्वेशन अच्छा होगा। अब उसको हम पीस के लाने के बाद भी क्या होता है, उसमें सीड्स बहुत ज़्यादा होते हैं। पहले ज़माने में क्या करते थे, कोशिश करके सीड्स निकालते थे, पर आजकल तो चाइनीज़ में सीड भी खाते हैं, इटालियन में भी। यस। The paprikas. तो फिर हम उसको छान लेते हैं
छानने के बाद में ना हमको उतना अच्छा कलर नहीं किससे दिखता। छानना होता है? बहुत बारीक चल नहीं, मीडियम, मीडियम। ओके जिससे हम आटा छानते हैं वैसे छन्नी ओके से। ओके और छानने के बाद में अब क्या है, अगर उसको अच्छा कलर लाना है और उसको प्रिजर्व भी करना है, तो समझो हमने जैसे 1 किलो मिर्ची ली पिसी हुई, तो उसमें हम 100 ग्राम जितना तेल लेते हैं। कोई भी तेल हो, रिफाइंड हो, सीम का तेल हो, राइस ब्रान हो, सनफ्लावर हो, कोई भी तेल होना चाहिए, सरसों का तेल नहीं। और फिर उसको हम मिर्ची में डाल देते हैं और उसमें 1 किलो है तो समझो 1 मुट्ठी या 50 ग्राम जितना सॉल्ट वो डाल के उसको अच्छी तरह से मिला लेते हैं। So in 1 kg of the chili powder, we are adding 50 grams Of of salt. salt एंड 100 ग्राम्स ऑफ and ऑयल। 100 grams of any. I would Oil. prefer filtered oil over the Okay. refined ones. So और उसको अच्छी तरह से मसल लिया। हाथ से नहीं मसल सकते, हमको स्पून से ही उसको मिलाना पड़ता है, नहीं तो हमारा हाथ जलने लग जाएगा। और फिर आप उसको स्टोर कर दो, पूरे साल मिर्ची का कलर खराब नहीं होगा और आपकी मिर्ची भी खराब नहीं होगी। and वो जो preservatives आते हैं गोली वगैरह नहीं, वो इसमें नहीं डाल सकते क्योंकि उसमें क्या ऑयल होता है ना, तो उसको खींच लेगा, तो नुकसान करेगा। तो इसलिए हम लोग सॉल्ट और तेल डाल दिया। that acts as a natural Yes, preservative. it is. Amazing. So in the haldi we had added ghee as a natural preservative. Here we are adding oil and salt for the red chili powder as a natural preservative. Point to be noted. Next we move on to the dhania powder. Well, the dhania powder has a lot of benefits. इसकी जो तासीर होती है वो बहुत ही ठंडक देने वाली होती है, इसीलिए गर्मी के सीजन में आपने सुना होगा, मैं भी कई बार रेकमेंड करती हूँ धनिया का पानी पीना है। तो इसके भी काफ़ी सारे जो हेल्थ बेनिफिट्स है वो हल्दी और रेड चिली के सिमिलैरिटी में है। एंड इट इज़ वेरी गुड टू रिड्यूस weight as well as very good for treating constipation issues, reducing acidity problems in commonly seen in people. So dhania powder, how do you manage? वैसे ही धनिया पाउडर में हम मिश्री और थोड़ा घी मिला के, और अगर टेस्ट के लिए चाहिए तो थोड़ा हम गोंद को भी तल के डाल सकते हैं, थोड़ा खोपरा कस के उसको भी सेक के डाल सकते हैं। वो गर्मियों में खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, एज अ थोड़ा सुबह में Mid time snack. यस स्नैक टाइप हो जाता है और हमारे पेट को ठंडा भी देता है, वो बहुत टेस्टी लगता है। So mama, that recipe needs to be demonstrated very soon. Yes. We'll come up with that. So subscribe कर देना चैनल, अगर नहीं किया तो, नहीं तो मिस कर दोगे ये सब। अच्छा, धनिया को हमको प्रिजर्व करना है ना, तो कभी कभी क्या करते हैं, कपड़े में एक हींग का डला लेते हैं और उसको लपेट के वो उसमें डाल देते हैं। अगर पाले की गोली Do we need to sun dry the dhania? यस वी हैव टू, How many days? ओनली 2-3 आवर्स। अगर हमने ज़्यादा टाइम धूप में धनिया को सुखा दिया ना, तो उसका कलर उड़ जाता है। So as you can see and as I can relate to it, कहीं ना कहीं हमारे ये ट्रेडिशनल मेथडोलॉजीज मिस हो Sun. चुके हैं और इसीलिए जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी है वो बहुत कॉमनली आजकल देखी जा रही है। Am I right? यस Yo. So विटामिन डी जो है ये सन ड्राई करने से, ये सब चीज़ें करते रहने से हमारे बॉडी में विटामिन डी अच्छे से मिलता था, पर आज हम रेडी पैकेट्स लाते हैं and we really do not know how they are sun dried or whether they are not. So that is one point that we need to note, and that's why going traditional and going to the roots is definitely unbeatable. Okay, so over to तो you. धनिया पाउडर अगर हम रेडीमेड भी ले आते हैं तो पाले की गोली आती है, वो डाल दो, या हींग का डला। मगर अगर बहुत ज़्यादा हींग का डला स्ट्रॉन्ग हुआ तो उसमें फ्लेवर आ सकता है, इसलिए मैं ज़्यादा करके सजेस्ट करूँगी कि आप पाले की गोली डाल दो, कभी नहीं खराब होगा धनिया। Okay. और उसको हर हाथ है ना, कभी भी क्लीन करके मसाले निकालने चाहिए, With a different spoon. डिफरेंट स्पून। अगर आपने मिर्ची का स्पून धनिया में डाल दिया तो भी रिस्की हो जाएगा, वो Okay. आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। Okay, that's a very important tip, though a very small one, but very, very important, that we need to have different utensil spoons used for different masalas. Do Yes. not interchange or mix them. Next, we move on to the mustard seeds. Mustard seeds are a rich nutrient which is having selenium, which is having magnesium, and it helps largely in asthmatic attacks, in rheumatoid arthritis, and lowering the blood pressure. Also, for those people who have migraine issues, mustard is a superfood for you.
So you can use mustard oil as a home remedy that you can count on. For menopausal women who have sleeping issues, meaning you do not get sleep very often, mustard seeds are very, very beneficial. And someone who wishes to increase their appetite, here's a small tip. Mixing 1 teaspoon of black mustard seeds with milk and having it 15 to 20 minutes just before the meal is magical to increase the appetite in a person. So this is about the mustard seeds. Let's understand how to make it and how to preserve it. उसमें बनाने जैसा तो कुछ भी नहीं है। राई को क्या बनाना How है? many types of rye do we get? राई तो बहुत तरह की, कम से कम 3 तरह की आती है। एक राजस्थानी राई होती है, बहुत बारीक होती है, बहुत टेस्टी होती है, मगर उसको कढ़ाई में डालो तो आधी तेल में होती है, आधी बाहर उड़ जाती है। Okay. फिर एक मीडियम आती है, ब्लैक ब्राउन जैसी, वो सबसे बेस्ट होती है। और एक होती है थोड़ी मोटी राई होती है, मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चॉइस। किसी Okay. को बारीक अच्छी लगती है, किसी को राजस्थानी अच्छी लगती है, किसी को मोटी अच्छी लगती है। आजकल क्या है, हमको सब कुछ बहुत साफ सुथरा मिलता है। वी आर वेरी लकी नाउ, यू ऑल आर वेरी लकी। अगर हमको उसको साफ करना है तो आप एक अच्छी थाली लो बड़ी सी, उसमें राई को डालो और उसको ऐसे ऐसे हाथ से पीछे पीछे लेके जाएंगे ना, और उसको टिल्टेड रखना है थाली को। Slanted. यस, स्लैंटिंग। और फिर बाद में राई है ना ढलती जाती है नीचे, तो और बाद में लास्ट में कुछ कचरा सा होगा। हम एक आध पारे की गोली डाल सकते हैं, 1 किलो में 2 गोली डालनी पड़ती है। फिर से मैं बोलूँगी, ये सारे मसाले हमको कांच की बोतल में प्रिजर्व किया तो ज़्यादा अच्छा है। बाकी चॉइसेस है और Okay, so that's about the mustard seeds, and moving on to the last masala for today, and that's the jeera. This is one of my most favorite masala because not only I do generally recommend the jeera water for weight loss and for various other health benefits, but also it is very amazing as a helps in the gut bacteria, helps in digestive issues. It contains apigenin and it was luteolin. Yes, it was luteolin. And there's a study which has found that it is one of the most powerful anti-carcinogenic plant, that is jeera. And it helps in anti-cancer properties, anti-inflammatory, controlling blood sugar. It not only that, it also helps in boosting memory. It reduces inflammation in the body, lowers the cholesterol, and treats hyperacidity. It's a super food. I'll tell you, if you are suffering with any acidity issues, just try out this remedy and do comment on the comment section how is your benefit with this remedy. Just have 1 tablespoon of jeera post meals and you will see. Chew and eat it very slowly. Let the juice go very, very slowly into your gut system and you will see it works magic. At least for me, I have tried and tested out this particular ingredient. How do we store jeera? सेम। How do we find out what is the correct quality of the jeera? जीरा एक्चुअली एक ही क्वालिटी होता है, मगर उसके ना ऐसे अलग अलग साइज हो जाते हैं। बेस्ट सबसे मोटा वाला, फिर थोड़ा छोटा, ऐसे सबको ऐसे लगता है कि हमने सबसे बड़ा और मोटा वाला लिया तो सबसे अच्छा बेस्ट क्वालिटी का लिया, जो सबसे एक्सपेंसिव होता है। मगर मेरे हिसाब से थोड़ा मीडियम लेंगे ना, उसमें मिठास ज़्यादा रहती है। Okay. और इसको प्रिजर्वेशन के लिए बेस्ट है कि 5-6 घंटे की अच्छी धूप लगा दो, और अगर 5-6 घंटे की नहीं लगा सके तो 2 दिन लगा दो, 3-3 घंटे की। और बैल अच्छे से उसको गर्म हो गया तो आप भर के रख दो, ख़राब बिल्कुल नहीं होगा। फिर भी अगर आप पानी की गोली ला सकते हैं तो उसमें 2 गोली डाल दो, कभी ख़राब नहीं होगा। Cool. So are we done with the haldi, mirchi, dhania, jeera and rye? Yes, we are done with this. Hing, ajwain is another very amazing masalas that are a must in our kitchen. And ajwain, would you like to share something अजवाइन about? के बहुत सारे फायदे Absolutely, it is. मालूम है ना, गैस वगैरह सब चीज़ के लिए। और जो गैस वाली सब्जियां होती है उसमें तो कंपलसरी होता है अजवाइन डालना। Correct. और बहुत सारी चीज़ों में सबको पता ही है। उसको है ना, देखो एक बेटा बहुत अच्छा आइडिया है। अभी तो सब कुछ साफ सुथरा मिलता है, और बारीक अजवाइन जितनी टेस्ट में अच्छी होती है ना,
उतनी मोटी नहीं होती है, मगर लोगों को क्या लगता है कि बड़ी साइज की लाए तो बहुत अच्छी अजवाइन है, मगर आई विल It प्रेफर differs in the taste. या मीडियम साइज अजवाइन. The aroma, the taste differs when you have a medium size ajwain. यस यस. And though the nutritional benefits remain the same for both of them. अच्छा, फिर भी अगर समझो अजवाइन हमारे यहाँ पे घर में आ गई और उसमें हमको लग रहा है कि कुछ कंकड़ पत्थर है, तो वो होते हैं ना सॉफ्ट मटके होते हैं, तो उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप क्या करो, उसको 1-1.5 घंटे के लिए पानी में सोक कर दो. सोक करके उसको धीरे से छलनी में छान लो, हल्के हल्के ऐसे करके, मट्टी सब नीचे रह जाएगी, अजवाइन आ जाएगी, उसको कपड़े पे सुखा दो. Sun drying. सनराइज में. Sun drying is the secret here that I have learned. सन ड्राइंग करने से एक दिन में नहीं सूखी होगी, सेकेंड डे वो हो जाएगी. Correct. अच्छी क्रिस्पी सूख गई, आप उसको बॉटल में भर के रख दो. It No won't catch problem. moisture. नो नेवर. अगर It has आपने to be अच्छे से properly ड्राई sun किया dried. या Okay. या भले आप 3 दिन रख दो, 3-3 घंटे के लिए. So friends, this is this much for this episode 1. Definitely we have lots of secrets coming up with the Nani Dadi kitchen secrets episodes coming up next. Do not forget to subscribe the channel, do share, do like, and definitely we are waiting for your comments. If there's anything that you want us to specifically ask the Nani Dadi secrets, do mention it in the comment section. We'll try our level best to reach out to you with this video storage. Thank you so much. This is Prerna, your nutritionist from NutriRate, signing off with my mom and our Nani Dadi.